All right. Hi, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening. करना है। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का. Now, for this chapter, what I have decided is that let's try to see if you can write the notes while we are discussing things. I think it's high time that students understand the importance of attending the classes regularly and not relying on the recordings. So I'm not going to share the recording. I'm not going to share the notes as well. Make sure that you are copying each and everything down. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Very good. अच्छा. Now, last class में मैंने आप लोगों को kinetics का जो डिस्कशन कराया था जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का डिस्कशन किया था. आई होप उसके ऊपर बेस्ड आप लोगों ने एफबीओ एफबीएस के क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे. Right, so we will take out some time towards the end of today's session, some last 10-15 minutes to partly discuss some of your doubts. ठीक है, धीरे धीरे करके ऐसे आपके बाकी के डाउट्स भी कवर कर देंगे. अभी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में तो आपको कुछ खास होमवर्क मिलने नहीं वाला, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स. So make sure this time is being utilized in working on whatever is there in the kinetics का booklet. ठीक है. All right. So volumetric analysis can also be termed as mole concept returns, mole concept part 2, या stoichiometry part 2, because the chapter serves the same objective जो हम लोगों ने mole concept chapter में पढ़ा था. What was the main objective of mole concept chapter? What is it that we learned as, say, one sentence or two sentence learning from that chapter? बताओ. It gave us some understanding about the how the chemical reactions are, like chemical equations. Well, not really the answer that I was expecting, but एक और Quantitative Sir, analysis. yes, sir, probably analysis of how much volume of a compound is being formed or consumed. right? So we used to analyze reactions. That was what we primarily did in mole concept as a chapter. कि कितने reactant से कितना product बनेगा या कितना product बनाने के लिए कितना reactant लगेगा, like that amount, that quantity. उसका discussion was the crux of mole concept. That same objective is something that we are going to see in this chapter also. Our objective will be to analyze reactions, primarily redox reactions. Like I will talk about what is meant by redox reactions, but that will be the key focus in this chapter. And as part of that analysis, हम लोग एक नया टेक्निक सीखेंगे. एक टेक्निक जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ था इन मोल कंसेप्ट चैप्टर was based upon coefficients, right? If we are able to balance an equation and write the coefficients of reactants and products, then we can establish the relationship between quantity of reactants and products as well. कितने अमाउंट से कितना बनेगा, कितना अमाउंट बनाने के लिए कितना कंज्यूम होगा. See, all of that is something which we were able to see and understand based upon balanced equation, right? Now, in this case, in this scenario, when we have redox reactions, तो हम लोग एक और टेक्निक सीखेंगे, एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे called as equivalence concept, which will help us establish relationship between reactants and products.
without the need of balanced coefficients, without the need of balancing the equation. तो वो क्या तरीका रहेगा, कैसे उसको यूज किया जाएगा, अप्लाई करा जाएगा, विद टाइम वी विल कम अक्रॉस. ठीक है, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, नाउ स्टार्ट करो यहाँ पे. मेक श्योर दैट यू राइट एवरीथिंग डाउन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टर्म्स जो कि आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे एंड इनकी ओल्डर डेफिनेशंस भी देखी होंगी. ऑक्सीडेशन meant was addition of oxygen or removal of hydrogen. Similarly, reduction meant removal of oxygen or addition of hydrogen to a compound. However, we will be discarding these old definitions. The newer definition, which will be more important for us, that we will be focusing upon, is based upon electrons or the concept of oxidation state or oxidation number. As per this new definition, oxidation means loss of electron and reduction means gain of electron. Or you can think of it as increase in oxidation state or increase in oxidation number. If the oxidation state or oxidation number decreases, then we will call it as reduction. Please note, there is nothing defined like reduction state or reduction number. ऐसा कुछ भी नहीं है. We just define oxidation state. Now, a very, very simple or crude definition of oxidation state is valency of substance, valency of element. However, in this chapter, we will be going into much more depth. So we will be learning as a separate topic what is meant by oxidation state or oxidation number. Right? यहाँ तक का लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. All right. Now, just give me 1 minute. I'll just bring some water and come back. All right. Yeah. In fact, I think I made this announcement in the beginning of the lecture only, but some students joined late. So I hope abhi tak most of you have joined in. I am not going to share any recording. I am not going to share any notes. Please make sure that you are attending the classes regularly. You are copying each and everything down that I am highlighting over here, writing over here. आप सब कुछ during the session उतारोगे. ठीक है? If you feel that the speed is slow, take a screenshot. ठीक है? Because sometimes you do tend to write a little slowly. I will try to wait, but then take a screenshot if it is something that is taking a lot of time for you. But don't wait up for notes to come to you by the end of the lecture. Make sure that your internet connection is good. You are not sitting randomly here and there using 4G and then parallel में कुछ और stream हो रहा है और तुम्हारा net disconnect हो रहा है. Ensure that you have a proper connection so that बाद में I don't want to hear any excuses. Sir, net ये था वो था, and I will need the recording because that is not going to be available. Now, coming to this next concept, that is oxidation state or oxidation number.
यहां पर आप नोटिस करना क्यों तुम्हारे कॉलेज एग्जाम अगर ऑफलाइन मोड में चल रहे होते तो तुम क्लास अटेंड नहीं करने आते क्या रुद्र? ये कैसा एक्सक्यूज हुआ? हाँ, अगर आपका एक कोई क्लास मिस हो गया है कॉलेज एग्जाम्स की वजह से, आई वुड नीड अ रिटन एप्लीकेशन टू बी फॉरवर्डेड विद योर पेरेंट्स का सिग्नेचर ऑन इट, validating the fact that you were not able to attend because you had exams, and post that you will be given the link. Make sure that link stays with you. अगर उस YouTube के वीडियो का व्यू काउंट 1 या 2 से ज्यादा भी हुआ, then you will be barred from receiving any further links in future. ठीक है? All right. Coming to this definition of oxidation state or oxidation number. So यहाँ पे नोटिस करना, जैसे मैंने बताया, crude definition is oxidation state or oxidation number is as per the valency. However, यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिफाइन करेंगे. Oxidation number is defined for an atom of an element in a particular species. थोड़ा डिटेल में यह ऑब्जर्व करना. What does this mean? Oxidation number is defined for an atom of an element in a particular species. एक एक वर्ड इसका नोटिस करेंगे, धीरे धीरे विद टाइम आपको ये समझ में आएगा. When I'll be taking some more examples. The definition is that it is equal to the number of electrons lost or electrons gained by the atom while forming the particular species. In case the electrons are lost, तो हम लोग positive sign assign करेंगे. In case the electrons are gained, तो we'll assign a negative sign to the oxidation state. For example, यहाँ पर आप नोटिस करना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है? इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, ठीक है सर, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन लाइक दिस, देन द क्वेश्चन इटसेल्फ इज इनकम्प्लीट, बिकॉज अनलेस गिवन द कॉन्टेक्स्ट कि किस स्पीशीज में कार्बन प्रेजेंट है, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात नहीं कर सकते. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज. ठीक है? सबसे पहले एक्चुअली ये डेफिनेशन रहेगी, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज. However, what we also find is that sometimes in certain compounds, एक ही एलिमेंट के मल्टीपल एटम्स कैन शो different oxidation states. We will see some examples. थोड़ी देर में आपके सामने क्लियर होते जाएंगे. सबसे पहले अपन आयनिक कंपाउंड्स पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. सो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na in NaCl, क्या आंसर रहना चाहिए? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? Plus one. साइन यूज करना पड़ेगा बिकॉज इट इज गिविंग one electron, so we use a positive sign. What about the oxidation number of chlorine in MgCl2? -1. Right. So यहाँ पर as you can see, the oxidation number of chlorine is -1. You might also say कि -2 सर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बट दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है. ठीक है? तो यहाँ पर बोथ
the chlorine atoms have an oxidation state of -1, right? In general, we will say that oxidation number of chlorine is -1 by looking at this example. ये समझ में आए दोनों example? Yes, sir. लिख लिए? नहीं सर, एक मिनट। Yes, sir. फटाफट लिखो, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। फटाफट लिखो, पैरेलल लिखो, साइमल्टेनियसली लिखो। All right, now next example notice करना. If I ask you what is the oxidation number of Pb and oxygen in Pb3O4, क्या रहेगा आपका आंसर? -1. प्लस -2 नहीं. +4 सर इसमें ऑक्साइड और पेरोक्साइड दोनों आएगा ना? नहीं, नॉर्मल ऑक्साइड है, और ऑक्सीजन का -2 ठीक है? तो इसमें चारों ऑक्सीजन एटम्स जो है वो -2 ईच है. Oxidation number of all 4 atoms in oxygen is -2 each. सर सो पीबी का 8/3 Right? So आपको लगेगा कि Pb का is something that you have computed as 8/3. Now that is something which will be accepted as a correct answer. However, please note that it is an average value. The real answer lies in knowing the fact that Pb3O4, ठीक है, जो कि आपको नहीं पता था, अगर पता था तो अच्छी बात है क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है ये, that Pb3O4 is a mixed oxide in 2:1 ratio of PbO and PbO2, right? In PbO, the oxidation state of Pb is +2, right? And उसका 2:1 का रेशियो है, so 2 atoms of Pb they are in +2 oxidation state, and then PbO2 के अंदर there is +4 oxidation state of Pb, right? So out of the 3 atoms that are there in Pb3O4, 2 atoms are in +2, whereas 1 atom is in +4 oxidation state. Hence the average value 4 times 1 plus 2 times 2 upon 3, that is 8/3, can also be accepted as a correct answer. In fact, in future आगे जब हम calculations करेंगे तो ये average values के साथ में ही calculations कर लिया करेंगे. It will not change the answers, it will give us correct answers. ठीक है, थोड़ा tricky example था, something but you need to know. सर एक बार वापस समझा दो, नहीं समझ आया। So question वापस से notice करना. When I pose this question in front of you, oxidation number of Pb and O, पूछ रहा हूं मैं in Pb3O4, right? So when you get that question, अब आपके दिमाग में
जो पहला थॉट प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से आएगा that typically oxygen shows an oxidation state of -2 in its oxides, right? So even to help you with that मैंने बता दिया कि चलो ठीक है, oxidation number of all the 4 oxygen atoms here in Pb3O4 is -2 each. But after knowing that, when you now try to use that valency वाला concept जो आपने जूनियर क्लासेस में सीखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, तो उससे यू कम अप विद एन आंसर दैट पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू बी +8/3. यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, हर एक ने 2-2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं ऑक्सीजन के एटम्स ने. वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए होंगे? 3 पीबी के एटम्स से, राइट? So you then come up with an answer that maybe the oxidation state is +8/3, like each Pb atom giving 8/3 electrons. However, it does not make sense, like fractional electrons कैसे हो सकता है? So that is where this background comes of help, that Pb3O4 is a 2:1 ratio में mix of PbO and PbO2, जहाँ पर you have in PbO you have lead in +2 oxidation state and PbO2 you have lead in +4 oxidation state. And जो 8/3 value है, that is actually an average value of oxidation state of the lead atoms in Pb3O4. अभी समझ में आया? Yes. ठीक है. So ये ऊपर वाले जो example थे, these were like simple ionic compounds. Sometimes you come across such tricky ionic compounds also. There are other varieties also, but धीरे धीरे build करेंगे that learning. अच्छा, ये वाला example बता दो इसके नीचे. What is the oxidation number of aluminium and oxygen in Al2O3? सर एल्यूमिनियम का +3, +3 -2. Right, aluminium is +3 and oxygen is -2. -3. -2. Aluminium is +3, oxygen is -2, right? Don't write +6 -6, that will not be the correct answer, right? यहाँ पर what you can say is that in Al2O3 there are 2 aluminium atoms both in oxidation state +3, or you can say that there are 3 oxygen atoms, all of them in state -2 each. समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. All right. Now, ionic compounds में तो genuinely electrons का exchange होता है. Like one atom gives electrons, other atoms takes electrons. However, covalent compounds में notice करना, in case of covalent compounds, there is no transfer of electrons. Electrons share हो रहे होते हैं. However, for the sake of calculation of oxidation state, we will assume electrons to be transferred from less electronegative atom to more electronegative atom. Okay, this is something which will be a hypothetical understanding. Actual में तो covalent compound में we understand that electrons are shared, not transferred. But for the sake of calculation of oxidation state, we will just assume electrons getting transferred from lesser electronegative atom to higher electronegative atom, right? So let's say if I ask you as an example, what is the oxidation number of carbon and hydrogen in CH4? तो क्या आंसर रहेगा आपका? -4 +1. Right? So सबसे पहले आप इसमें लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाओगे, देखोगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, तो यू विल फाइंड कि सिंगल सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में. देन you remember the fact that electronegativity of carbon is more than hydrogen. That means you will shift these electron pairs towards carbon. Now what we see is that कार्बन के खुद के तो 4 इलेक्ट्रॉन थे और बाकी 4 उसने हाइड्रोजन से ले लिए.
तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, -4. It took 4 electrons, 1 each from the hydrogen atom. And the oxidation number of hydrogen, like if you notice, all the 4 hydrogen atoms are giving 1 electrons each. So their oxidation state is +1. Right? Quite simple. Okay. ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करके बताओ मुझे. What is the oxidation number of carbon in CO2 and in HCN? Sir, in CO2 it's +4. All right. And in HCN? Sir, 4 -4. -2. -3 and +2. एक ही जन ने करेक्ट आंसर दिया अभी तक. सर कौन है वो? तुम लोग अटेम्प्ट लो ना. हाँ ठीक है अर्पित, आपका ठीक है. एंड यश तुम्हारा ठीक है. सर +2 है क्या? Yes. So in CO2 the answer is +4. That is pretty simple, straightforward to understand. By looking at the Lewis structure we understand oxygen and carbon के बीच में डबल बॉन्ड होगा and oxygen is more electronegative. तो ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए. तो नेट कितने इलेक्ट्रॉन खींच लिए? 4 खींचे, बट 2 तो उसके खुद के ही थे, है ना. तो उसने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए. Hence the oxidation state of oxygen is -2. Same goes for the right hand side वाला ऑक्सीजन also. राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन खींच लिए अपनी तरफ? 4 इलेक्ट्रॉन. डबल बॉन्ड है क्योंकि, बट 4 में से 2 तो उसी के थे. उसने खींचे तो इफेक्टिवली कार्बन के 2 ना, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हुआ. If you look at the carbon, it lost 2 electrons to the left hand side oxygen, lost 2 electrons to the right hand side oxygen, and hence oxidation state +4. Right? अब अगर आप HCN का भी समझोगे तो कैसा समझ में आएगा? फर्स्ट यू ड्रॉ द लोएस्ट स्ट्रक्चर. ठीक है. You look at how the bonds are. Now between hydrogen and carbon there is a single bond, right? किसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा? कार्बन की तरफ. ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ. यानी कि हाइड्रोजन हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1. Now before I comment on carbon just based upon this bond, I have to also see carbon और किस किस के साथ में attached है. So we see that carbon nitrogen के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, and we know the fact that nitrogen is more electronegative. तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? नाइट्रोजन की तरफ. तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया -3. So now if you look at carbon, it has lost 3 electrons to nitrogen and gained 1 electron from hydrogen. तो नेट इफेक्ट क्या रहा? It has lost 2 electrons, hence its oxidation state is +2. Is this clear with everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो क्या रहेगा? In H2SO4, what is the oxidation state of sulfur? सर +6. ठीक है, करेक्ट है आंसर. लुईस स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट और देखो क्या आ रहा है. So +6. +6 आ रहा है. Yes. H2SO3 में सल्फ्यूरस एसिड में what is the oxidation state of sulfur? बता देना अगर कहीं पर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो, बिकॉज आई अज्यूम समटाइम्स कि ये काफी इजी है, खुद से हो गया होगा.
H2SO3 में are we getting the answer as +4? Yes, sir. Yes. सल्फर का एटम, इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले ऑक्सीजन को, एक लेफ्ट वाले और एक राइट वाले को. ओके, ठीक है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? H2O2 में -1. करेक्ट. उसको अब हम लोग कैसे बॉन्डिंग के थ्रू समझ सकते हैं? H2O2 में आप नोटिस करोगे, इफ यू ड्रॉ इट्स लो स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से रहेगा. अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो तो इक्वली शेयर होगा, लाइक बोथ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर आइडेंटिकल. तो हम लोग उसको किसी भी जगह पर ट्रांसफर नहीं करते, वी लेट इट स्टे इन द मिडल एज इट इज. ऑल वी कैन सी इज दैट ऑक्सीजन ने अपने लेफ्ट वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, हेंस इट इज -1 इन ऑक्सीडेशन स्टेट. राइट. हाइड्रोजीन में नाइट्रोजन का कितना होगा जरा बताना. N2H2 में नाइट्रोजन का -2. -2. करेक्ट. अगेन व्हेन यू ड्रॉ इट्स लो स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आएगा. जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का है दैट इज तो इक्वली शेयर्ड ओनली, so we let it be as it is. But if you see nitrogen is attached to other hydrogen atoms, उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, so the oxidation state will be -2, right, for both the nitrogen atoms. Clear है ये examples? Yes, sir. Sir, can you scroll up a bit? हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट. सर कोवेलेंट कंपाउंड से दिखा दो ना. ठीक है. यस सर. Yes, sir. ऑलराइट. नाउ अब जैसा आपने नोटिस करा that the method to determining the oxidation number or oxidation state of an atom of an element in a compound is to draw the structure of the compound. To draw the Lewis structure, understand how bonding is there, कौन सा atom किस atom से bonded है, कैसा bonded है, and then based on electronegativity you can come with the answer of the oxidation state. But it's a time taking process. It takes time to draw the Lewis structure, and sometimes you are not even sure what the Lewis structure might be. So there are some set of guidelines, or you can say rules. Rules तो नहीं बोलना चाहिए, actually guidelines is ज़्यादा अच्छा word है, because they aren't very robust, to determine this oxidation number या oxidation state. Best method तो जो मैंने आपको बताया is going to be to draw the structure only. That is the best way in which you can determine the oxidation number. However, if you don't want to do that, then these points are going to come of help. क्या क्या point है यहाँ पे? पहला point हम लोग notice करेंगे. Oxidation state of an element in uncombined form or elemental form is 0. Right? तो जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का मेटल है या जिंक का मेटल है, तो उस मेटल के फॉर्म के अंदर अनकम्बाइंड फॉर्म में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या असाइन करते हैं? 0. ठीक है. जैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इन क्लोरीन गैस, दैट इज गोइंग टू बी असाइंड एज 0 ओनली. क्लियर है पहला वाला पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया. Yes, sir. Yes, sir.
दूसरा पॉइंट नोटिस करना, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वी विल टेक एज -1 ओनली, except in case of F2 of course, where it will be 0. Then हाइड्रोजन के बारे में नोटिस करना, हाइड्रोजन has an oxidation number of +1 in general. In its compounds, hydrogen will be taken as oxidation number +1, except some known examples in cases of certain metal hydrides. ये अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्यूमिनियम का जो हाइड्राइड होते हैं, उसमें H atom forms an anion actually, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर -1 हो जाता है, हाइड्राइड आयन बोलते हैं उसको, राइट. एंड ऑफ कोर्स H2 में where its oxidation state will be 0 only. Then another important guideline or point to remember, alkali metals, whenever they are combining with other species, they will show oxidation number +1. Alkaline earth metals will show +2 and aluminium will show +3. ठीक है. फ्लोरीन का सिंपल है, फ्लोरीन का -1 रहेगा because it is most electronegative and it only forms single bond, right? ऐसा भी नहीं है कि वो अपना ऑक्टेट वगैरह एक्सपैंड कर रहा हो. ठीक है. सो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी टेकन एज -1 ओनली. ठीक है. लिखिए ये बुलेट पॉइंट्स. Yes, sir. हाँ, F2 में ऑफ कोर्स इट विल बी 0. एलिमेंटल फॉर्म हो गया ना उसका. देन ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे. सर हल्का सा ऊपर कर दो. लिखा. सर स्क्रीनशॉट ले लिया. क्या चीज? स्क्रीनशॉट ले लिया सर. हाँ. अच्छा, ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान देना. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर in most of its oxide is going to be -2. in general जो भी इसके ऑक्साइड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जनरल ऑक्साइड्स में -2 रहता है, एक्सेप्ट परऑक्साइड्स जिसमें इट विल बी -1, सुपर ऑक्साइड्स जिसमें इट विल बी -1/2, ओजोनॉइड्स जिसके अंदर इट विल बी -1/3. अभी जो -1/2 and -1/3 वैल्यूज है, these are fractional values and of course they are average values only. There is nothing like आधा इलेक्ट्रॉन या 1/3 इलेक्ट्रॉन ले लिया दे लिया. These are average values. And say in case oxygen combines with an element which is more electronegative than that. एक ही एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज फ्लोरीन. तो अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाता है तो फिर वो कई बार पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन वैल्यूज भी शो कर देता है. ऑक्सीजन का समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. लिख लो ऑक्सीजन का भी. Done, sir.
Done, sir. हैलोजेंस के बारे में नोटिस करना, हैलोजेंस जनरली ऑक्सीडेशन नंबर -1 शो करते हैं. However, when they are combining with more electronegative atoms, they can show positive oxidation states also. Right? जैसे HCl में क्लोरीन -1 है, बट ICl जैसे फॉर एग्जांपल है, तो इसमें आयोडीन +1 रहेगा और क्लोरीन -1 रहेगा. IF5 का एग्जांपल आप लोगे तो उसमें आयोडीन आपको दिखेगा 5 फ्लोरीन के साथ में सिंगल बॉन्डेड है, तो सब फ्लोरीन -1 है एंड आयोडीन +5. What about HClO4? HClO4 में what will be the oxidation state of chlorine? +7. +7. +7 आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, by drawing the diagram we can understand that it is +7. ठीक है. However, ये जो गाइडलाइंस मैंने आपको बताए, इनका पर्पस यही है कि हमें लुईस स्ट्रक्चर ना बनाना पड़े और हम फटाफट आंसर निकाल पाए. तो उसमें हेल्प करता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, that sum of oxidation states of all atoms in a species is equal to the net charge on that species. तो अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो sum of all the atoms का oxidation number is going to come out to be 0. अगर कोई cationic species है या anionic species है, then the sum will come out equal to the charge. ठीक है, keeping the sign in mind. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल SO4 2- है, इसमें विदाउट ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर इफ आई आस्क यू टू कमेंट ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो आपका क्या आंसर रहेगा? Sir, positive +6. राइट. तो आप इसमें क्या बोलोगे? लेट द रूल्स डिक्टेट कैसे हमें वर्क करना है. तो रूल्स के हिसाब से ऑक्सीजन तो होगा -2 और सल्फर को हम लोग मान लेते हैं X. Now sum of the oxidation state should be equal to the net charge, which is equal to -2. तो हमने कैसे लिख दिया यहाँ पर? सल्फर का है X और 4 ऑक्सीजन एटम है और हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. इन सब का sum should be equal to the net charge, that is -2, and based on that when we solve we get the answer as X is equal to 6 +6 in fact. ठीक है, समझ में आया वाला? Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सिलेट आयन में बताओ कार्बन का कितना रहेगा? यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑल्सो इफ यू आर कंफर्टेबल, बट अगर नहीं है तो आप रूल्स यूज करके भी आंसर करो. Sir, +3. +3. +3. +3. +3 आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, दोनों का X ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया. 4 ऑक्सीजन एटम है -2, इन सबका सब -2 के बराबर होना चाहिए. राइट, सो X का वैल्यू आ गया +3. ग्रेट. KMnO4 में व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज? +7. +7. +7. तो आपने सेम वही सेट ऑफ रूल्स यूज करें. पोटेशियम क्या रखा आपने? +1. +1. ठीक है, अल्कली मेटल्स का हमने रूल पढ़ा था, ऊपर +1 है. देन ऑक्सीजन जो है वो -2 रखा. राइट, मैंगनीज को X रखा, तो आपका ये आंसर आ गया. राइट, से फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू Na2Cr2O7, तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? Sir, +6. सो 2 सोडियम के एटम है +1, 2 क्रोमियम के एटम्स हमको निकालने हैं.
7 ऑक्सीजन के एटम्स -2 ईच, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा +6। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। FeSO4 में what will be the oxidation state of iron as well as sulfur? Iron का +2. हाँ, And sulfur is Sulfur plus का 6. +6. राइट। सो यहाँ पर अगर मैं जस्ट ब्लाइंडली रूल्स के हिसाब से सोचूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज आयरन का भी कोई रूल नहीं है, सल्फर का भी कोई रूल नहीं है। जो बुलेट पॉइंट्स हमने ऊपर देखे उसमें ऑक्सीजन का जरूर है कि ऑक्सीजन का -2 होगा, बट देन आई विल बी स्टक कि मैं आयरन और सल्फर का क्या मानूं। तो उस केस में जो कंपाउंड के कटायंस और अनायंस है उसका नॉलेज काफी काम आता है। तो यहाँ पर बाय लुकिंग एट द सॉल्ट, इफ यू आर एबल टू क्विकली थिंक दैट इसमें Fe2+ कटायन एंड सल्फेट अनायन है, that will then surely help us come up with the oxidation states. Iron का रहेगा +2 and then sulfate ion में by using the rules that we had discussed above, we'll get the oxidation state of sulfur as +6. ठीक है, समझ में आया ये? Yes. Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. What about this compound, ferric sulfate? सर आयरन का 4, Iron का 3. Sir, iron का 3, +3. All right. And sulfur का by the same thought process, Positive. +6. +6. ठीक है, ग्रेट। अच्छा, एक क्विक सेट ऑफ एग्जांपल्स मैं आप पे प्रैक्टिस करा देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सर आप वो हाइड्रोजन वाला पॉइंट दिखा सकते हैं एक बार? कौन सा वाला पॉइंट? एकदम लास्ट में जो था ना। ये हाँ सर, ओके सर, डन, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, एक सेट ऑफ एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। 1 मिनट दो। Put them over here. एक मिनट ना, स्क्रीन फ्रीज होगी थोड़ी देर के लिए। ऑलराइट, फटाफट फटाफट आंसर बताते जाओ। पहले में +1. ठीक है, इसमें ऐसा रहेगा ना ये O2F2 में, लाइक पेरोक्साइड जैसा ही है ये, बट इसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑलराइट, इस वाले में +1. नाइट्रोजन का minus X मान लेते हैं। -1. -1. ठीक है, हाइड्रोजन के 3 एटम है +1 और ऑक्सीजन का 1 एटम है -2। तो इसका मतलब X कितना आ रहा है यहाँ पर? HCN Last. ऊपर ही देखा था थोड़ी देर पहले।
अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? +2. राइट, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे पोटेशियम जो है वो तो +1 है, राइट, आयरन इज आर अननोन, एंड ये जो साइनाइड है ओवरऑल इट इज -1, उसमें होगा कार्बन और नाइट्रोजन का कुछ, बट ओवरऑल तो इट्स अ -1 आयन ना, Yes, sir. सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, है ना। ऑलराइट, व्हाट अबाउट HiO3 में आयोडीन का क्या रहेगा? +5. +1. +5 इज द करेक्ट आंसर। MnO4 2- में मैंगनीज का +6. कितना रहेगा? +6. +6। Plus. CrO2Cl2 +6. +6. Plus. 6. What about phosphorus and calcium phosphate? +5. +5. +5. You have calcium 2+ and PO4 3- ion. PO4 3- ions क्या बता रहा है? X + 4 times -2 should be equal to -3. तो कितना आ रहा है? +5. What about P2O7 4-? +5. वापस से +5 आ रहा है। 2 एटम्स हैं फॉस्फोरस के, लेट देम बी X। 7 एटम ऑक्सीजन के, -2 इक्वल टू -4 आना चाहिए इन सबका सम, तो यू कम अप विद द आंसर +5। व्हाट अबाउट CrO5? +10. +10. Plus 10. +10 आ रहा है। Yes, sir. साउंड्स फिशी। सर +2 ना. टू मच नहीं हो जाएगा +10? सर मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स है क्या? तो CR ऑफ एक्सिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट करता है, इट्स हाईली अनस्टेबल बट इट डज एग्जिस्ट एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट इन सम टाइम। अभी मैं नीचे बात करूंगा इसके बारे में। ऑलराइट, अभी के लिए होल्ड पे रख लेते हैं, विल टॉक अबाउट इट। 11th और 12th वाले में बता दो क्या रहेगा? -10. Minus. 0। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, अगर आपको ये बॉन्डिंग के पर्सपेक्टिव से समझना होगा तो आप थोड़े टाइम बाद सीखोगे, देखोगे दैट इसमें कैसा रहेगा। आयरन के वेकेंट d ऑर्बिटल्स में CO अपना लोन पेयर थ्रू डेटिव बॉन्ड्स शेयर करता है, राइट, एंड गिवन द फैक्ट दैट इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए वो वापस से इसी की तरफ चले गए, इन द सेंस दो इलेक्ट्रॉन थे वो उसी के पास चले गए, आयरन के पास कुछ नहीं आ रहा है, ना वो इलेक्ट्रॉन दिया ना लिया, तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही है। ठीक है, ऑलराइट, एनी कमेंट्स ऑन द 12th वन? +3. +3, sir. राइट, सो अमोनिया हेयर इज अगेन न्यूट्रल। वापस से ये क्या करेगा, ये अपने जो लोन पेयर होंगे वो डेटिव बॉन्ड के थ्रू क्रोमियम के वेकेंट d ऑर्बिटल्स में डालेगा, राइट, बट इट्स अ डेटिव बॉन्ड, तो इन द सेंस 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों नाइट्रोजन के ही हैं, इनको शिफ्ट भी करा लिया वापस नाइट्रोजन के पास में, तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। वेरएज जो क्लोरीन है दैट इज अ -1 आयन, तो यहाँ पर आपका क्रोमियम जो रहेगा +3 स्टेट में रहना चाहिए टू बैलेंस आउट द 3 क्लोराइड आयंस। क्लियर है? यस सर. सर 11th वाला वापस बताओ ना एक बार। 11th वाले में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, इट्स अ न्यूट्रल स्पीशीज।
ओके सर। तो ओवरऑल मैं अगर लिखूंगा भी सही बाय रूल्स तो x प्लस 5 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0, तो x 0 ही आ गया ना। सर 12th वाले में एक बार NH3 न्यूट्रल क्यों, आप एक बार बता सकते हैं? NH3 न्यूट्रल ही है ना, लाइक इन लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल कंपाउंड्स NH3 एज अ मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही तो होता है। अगर ऐसा लिखा होता NH4, right? So कल को for example, let's say if I would have put in say some example over here saying Fe in no, not Fe, let me say sulfur in NH4 whole twice SO4, तो आप क्या बोलते हैं? This would be made up of ammonium and sulfate ions, Yes sir. right? अमोनियम में N का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता? Sir +3. +3, -3. Negative. ले रहा है ना हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन। Yes sir. Should have written x plus 4 plus 1 should have been equal to +1. एंड सल्फर का ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं अब तक, +6 रहेगा। Yes sir. ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने आ गए। Yes, sir. अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखना और सुनना, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। समटाइम्स these rules that we have been using above, they tend to give us fractional oxidation number also, right? तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेसिकली, इट वुड बी एन एवरेज वैल्यू। जैसे Pb3O4, अगर इस पे अप्लाई द सेट ऑफ रूल्स जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे, तो क्या करना है, 3 टाइम्स x प्लस 4 टाइम्स -2 इक्वल टू 0, हेंस x का वैल्यू आ जाएगा 8/3 प्लस 8/3। तो दैट्स द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb। एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ी इन्फो लगेगी। व्हाट वाज दैट इन्फो? Mixture. Mixed mixture of oxides. हाँ, Pb3O4 is a mixed oxide in which PbO and PbO2 are present in 2:1 का रेशियो। ठीक है, जैसे कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, इसमें क्या आ रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट? +4/3. +4/3. +4/3. Is that wrong? The answer is no, it's not wrong. It's right only. We'll accept that as answer. अगर एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो क्या लगेगा? इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या होता है इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर, याद है? कुछ इस तरीके से होता है इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर। आपको नहीं याद है, दैट्स ओके। तो इसमें 4 कार्बन एटम्स में से 2 कार्बन एटम +2 होते हैं और 1 0 होता है, एंड दैट इज व्हाट गिव द एवरेज वैल्यू एज 4/3। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, यहां तक का लिख लो, कॉपी कर लो। सर थोड़ा ऊपर करो ना प्लीज। ये वाला पार्ट, यस सर। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, डन। ये वाला पार्ट,
तो स्ट्रक्चर मिलने पे भी हम कैसे डिसाइड कर सकते थे ये? स्ट्रक्चर तो पता पड़ होना चाहिए ना, तभी तो ये कर- स्ट्रक्चर के बाद भी हमने चार्जेस कैसे लगाए? अरे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर लिए -2, इधर वाले पे ऑक्सीजन पे -2, राइट। फिर ये वाला जो बीच वाला कार्बन है, राइट, इसके लिए लाइक इक्वली शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट Yes, में भी got it. राइट में भी। तो इसके लिए कोई ट्रांसफर नहीं है, तो इसका हम लोगों ने 0 मान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड ये जो दोनों कार्बन है, इन्होंने बस दोनों ऑक्सीजन एटम्स को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं ईच, तो +2 है। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसमें बता दो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन? +16/3. +16/3. इट्स कमिंग आउट एज +16/3। अब इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली आपको आता नहीं है, बट याद रखना है, ठीक है। दिस इज लाइक वन ऑफ द एग्जांपल्स इन एनसीईआरटी, so we will keep that as part of our notes. This is its structure. Okay, let's say if I ask you what will be the oxidation state of bromine in this, तो अब आप आंसर कर पाओगे? +4 कौन से वाले का +4? बीच सारे का वाले का। +4? बीच वाले का प्लस बीच वाले का प्लस। और एजेस पे +6. Yes, sir. All right. So यहाँ पर कैसा रहेगा? These bromine atoms, they will be +6, this one will be +6 and बीच वाला will be +4. ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, they will be equally shared. ठीक है, अच्छा इसमें बताओ, सोडियम थायोसल्फेट में व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? +2. +2. +2 आ गया सर. The average value is +2, that is correct. ठीक है, but if I ask you what is the actual oxidation states, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर की हेल्प लगेगी. All right, so the structure is something as follows. Just one moment. हाँ, ये इसका स्ट्रक्चर है. Na+ कटायंस है and H2O3 2- अनायन है. This is its structure. तो इसमें बताओ क्या रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट? ये जो ऑक्सीजन है वो तो क्या हो जाएंगे, -2. What about the sulfur atoms? ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर नोटिस वाला करना, 0। ऊपर वाला 0, नीचे वाला +2. ये वाला सल्फर sp2 है एंड ये वाला सल्फर sp3 है. And you know the fact that electronegativity of sp2 sulfur is going to be more than the sp3 sulfur. -1 +4। तो क्या आ रहा है अब यहाँ पर?
ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर खींच लेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगा ऊपर वाले सल्फर का, और इस वाले के लिए क्या रहेगा +6। ऊपर 2 दिए, नीचे 2 दिए, लेफ्ट में 1, राइट में 1। समझ में आया? 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना इसने। क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट। सोडियम टेट्राथायोनेट, इसमें क्या होगा सल्फर का? Ten by 4. 10/4, that is +2.5. That is absolutely right. That's an average value. Acceptable answer. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको नहीं पता था, मैंने आपको बताया है। तो अब इसमें आप बताओ मुझे, what will be the oxidation state of the atoms? सर S का +5 और सारे O का -2। सारे सल्फर्स का +5। Sir, नहीं edges नहीं वाला सर, का बीच वाले 2 का न्यूट्रल होगा ना। हाँ, तो प्रॉपर बताओ ना फिर। edges का +5 and जो बीच के 2 हैं वो 0. ये सारे ऑक्सीजन -2 हो गए, राइट। एंड व्हाट वी फाइंड इज दैट यहाँ पर ये वाले तो 0 हो जाएंगे, बिकॉज लाइक ऑल द सल्फर एटम्स आर द सेम हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो शेयर्ड रहेंगे, और फिर जो लेफ्ट वाले सल्फर एटम है और राइट वाला सल्फर एटम है, दे विल बी शोइंग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? Yes, sir. Alright. So these were the select examples. ठीक है, ध्यान में रखना, ये जो examples मैंने आपके साथ में अभी शेयर करें, डिस्कस करें, these are not random examples. They are curated examples which are highlighted as common examples in standard textbooks. ठीक है, so make sure that ये example आप ध्यान में रखो, ऐसा नहीं कि just notes में एक बार देख लिए हो गया। Make sure you keep them in mind. तो ये कुछ कैसे एग्जांपल्स थे जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपका फ्रैक्शनल आ रहा था, राइट। सो समटाइम्स दीज रूल्स डू दैट, दे गिव यू फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड इट्स ओके, इट्स फाइन, वी वर्क विद देम। एक्चुअल के लिए स्ट्रक्चर लगता है। समटाइम्स दीज रूल्स गिव यू इनकरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो। सम इंपॉर्टेंट नोटेबल एग्जांपल्स आर एज फॉलोज। जैसे आपने CrO5 देखा था, क्या निकाला था इसमें रूल के हिसाब से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट? +10. +10. +10. राइट, +10 निकाला था, राइट। सो +10 में अब कैसा रहेगा? गड़बड़ लग रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए क्रोमियम के पास में देने के लिए? Yes. तो अब इसका जो एक्चुअल लो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ गड़बड़ है, इट होल्ड सम राज। तो ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने शो कर दिया, ये इसका लो स्ट्रक्चर। इट्स अ अनस्टेबल कंपाउंड ओनली, बट क्वाइट कॉमनली एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू नो। आप बाद में पढ़ोगे जब आप डी ब्लॉक एंड उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, तो उसमें क्रोमियम की सॉल्ट्स में, क्रोमियम के कंपाउंड्स में काफी कॉमनली आपको दिखेगा बात। अभी बेस्ड अपॉन दिस स्ट्रक्चर आप मुझे बता सकते हो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहने वाली हैं? So CR का -6. 6 +6. +6 ये ऊपर वाला ऑक्सीजन -2, देन ये परऑक्सी ऑक्सीजन जो है ये सब -1 हो गए,
and as a consequence chromium +6 state में आ गया. ठीक है, समझ में आया ये? Yes, sir. Yes. Sir. क्लियर है? All right. Then H2SO5 Carros acid, इसमें क्या आ रहा है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट एज पर द रूल्स? +8. +8. Sounds suspicious. Yes, so it's very rare. तो इसमें अगेन समथिंग इज देयर इन स्ट्रक्चर, मतलब सल्फर के तो होते ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 8 कैसे हो सकता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट? हाउ कैन इट लूज 8 इलेक्ट्रॉन्स? तो ये इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर है. अब जरा मुझे बताओ क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स का? तो H का +1. H का +1 होगा. दोनों तरफ H का +1 हो गया, ये ऊपर नीचे वाले ऑक्सीजन का -2 हो गया, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का -2, Peroxy का -1. ये पर ऑक्सी लिंकेज होगा, ये -1 -1 रहेंगे. सो बेस्ड अपॉन दिस नाउ वी अंडरस्टैंड दैट सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्चुअली +6. फिर 6 कैसे है? 3+7. ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिए, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन दिए, लेफ्ट में 1 दिया, राइट में 1 दिया. राइट. नो. राइट. ओके, ये वाला एग्जांपल बताओ. H2S2O8 मार्शल्स एसिड, इसमें कैसा रहेगा? So with the +7. +7. +7 अगेन थोड़ा सा लाइक वियर्ड है. है ना? हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे हो सकता है 7 ऑक्सीडेशन स्टेट? तो अगेन देयर इज समथिंग इन इट्स स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर. आपको नहीं पता था, मैंने बता दिया. लेट मी नो नाउ व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड. So 4. +6. राइट. सो यहाँ पर आप एक एक करके कंप्यूट करोगे. हाइड्रोजन +1 रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी +1 रहेगा. ये जो ऑक्सीजन है ऊपर नीचे वाले -2 रहेंगे, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. राइट. फिर ये लेफ्ट वाला, राइट वाला ऑक्सीजन -2 है और ये वाला ऑक्सीजन भी -2 है. बट ये जो परऑक्सी वाले ऑक्सीजन हैं ये कितने हैं? +1. -1 each. So now if you notice the sulfur atoms, they are +6 each. समझ में आया? Yes. Sir. तो इसका कोई रीजन होता है? इसका क्या रीजन होता है? नहीं, द फैक्ट दैट फॉर्मूला से अलग आ रहा है और फिर बिकॉज हमने फॉर्मूला में ये अज्यूम कर लिया ना कि सारे के सारे ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड है, बट स्ट्रक्चर से पता पड़ा कि नहीं, कुछ परऑक्सी ऑक्साइड्स भी हैं. वो नॉलेज स्ट्रक्चर से पता पड़ी. ऑल्दो उसका डाउट यहाँ से आने लग गया था कि अरे सल्फर का 6 से ज्यादा कैसे हो सकता है. कैरोज एसिड दिखा दो ना एक बार. एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना. दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. ठीक है, किसी एग्जाम्पल में डाउट है किसी को कुछ? सोडियम टेट्राथायोनाइड एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ना. सोडियम टेट्राथायोनेट में इफ यू गो बाय द रूल्स तो 2.5 तो समझ में आ ही गया होगा.
राइट. बाकी फिर इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कैसा है, देयर आर 2 सोडियम कटायंस एंड द एंटायर टेट्राथायोनेट आयन इज देयर S4O6 2-. तो वो S4O6 2- जो अनायन है उसका स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, मैंने ड्रॉ करके दिया है आपको. इट इज इन दिस वे कि 4 सल्फर एटम्स सिंगल बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ में, एंड देन जो टर्मिनल सल्फर होते हैं उनके ऊपर ये ऑक्सीजन के एटम्स लगे होते हैं, लेफ्ट में 3 राइट में 3. ठीक है. जो 2 ऑक्सीजन एटम है वो -1 है तो वो सिंगल बॉन्डेड है, बाकी ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्डेड है. अब गिवन दिस अंडरस्टैंडिंग हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे निकाले जाए. तो बीच के सल्फर जो है सेम हाइब्रिडाइजेशन है, तो सच सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ट्रांसफर नहीं मान रहे, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही आ गया. वेराज जो लेफ्ट वाला सल्फर है, अब आप उस पर फोकस करो, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में दिया, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया उसका. Okay, sir, got it. ठीक है. All right. Now let's quickly grasp this last concept for the day, that is redox reactions. So we have understood the concept of oxidation state. Now we can understand very easily what is meant by redox reaction. तो अगर कोई रिएक्शन है जिसमें एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो उसको redox रिएक्शन कहेंगे, अदरवाइज विल क्लासिफाई इट एज अ नॉन redox रिएक्शन. ठीक है. तो जैसे एक एग्जांपल नोटिस करना, सबसे सिंपल आपके सामने ये एसिड बेस रिएक्शन है HCl और NaOH का, राइट. इसमें if I ask you to compute the oxidation state of the elements that are involved, you will find none of the elements are changing their oxidation states. नोटिस कर लो एक बार. Yes, sir. Yes, sir. Right. You can see यहाँ पर there is no change in oxidation state of any of the elements that are happening. So this will be an example of a non-redox reaction. ठीक है. अच्छा, notice this example. Oops. Just a minute. ये वाला example notice करो. What about this example? जिंक और हाइड्रोजन का चेंज हो रहा है. जिंक और हाइड्रोजन का चेंज हो रहा है. किससे किस में जा रहा है? Zn0 to 2+ oxidase. हाँ. सर हाइड्रोजन का +1 से 0 जा रहा है. और हाइड्रोजन +1 से 0. 0 में जा रहा है. ग्रेट. तो यहाँ पर यू आर एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट. तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, मैं लिख देता हूँ. जिंक 0 था, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, जिंक +2 में, क्लोरीन -2 में, और हाइड्रोजन यहाँ पे 0, राइट. तो यहाँ पर नोटिस करना कुछ टर्म्स हैं जब आपके सामने इंट्रोड्यूस हो रही है. जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, right? So we say that zinc is undergoing oxidation, or we also called zinc as reducing agent या reductant. ठीक है. खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट. ठीक है. HCl में नोटिस करना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 जा रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है. That means it is undergoing the phenomena of reduction. Right? So we'll call HCl as oxidizing agent और ऑक्सीडेंट, जो खुद रिड्यूस हो, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे. ये टर्म समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिख लो फटाफट. Right. So if I give you some more examples,
तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा रिडॉक्स है कौन सा नॉन रिडॉक्स है. Yes, sir. एंड देन रिडॉक्स के अंदर आप बता सकते हो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट. Yes, sir. ठीक है, चलो शुरू हो जाते हैं. लिख लिया ऊपर वाला ये सबने? So wait. Just a minute. Done, sir. So done. चलो बता दो इनमें से कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स है एंड कौन सी नॉन रिडॉक्स है. जो रिडॉक्स है उसमें what will be the oxidizing agents and reducing agents? पहला नॉन रिडॉक्स. So first one redox. नहीं, पहला वाला नॉन रिडॉक्स का हो गया एग्जांपल. यहाँ पे नाइट्रोजन +5 है, इधर भी +5 स्टेट में रह रहा है. ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पर भी -2 में ही है. हाइड्रोजन +1 का +1 में ही है. तो ये तो नॉन रिडॉक्स का एग्जांपल हो गया. राइट. व्हाट अबाउट द सेकंड वन? रिडॉक्स. जिंक 0 से यहाँ पे आप नोटिस करोगे Na2ZnO2 में सोडियम +1 रहेगा, ऑक्सीजन -2 रहेगा. जिंक का कितना आ रहा है? +2. सोडियम +1, नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन -2. सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1. अमोनिया में हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन -3, H2O में हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2. सो व्हाट इज इट दैट यू आर सीइंग? जिंक जो है 0 से +2 जा रहा है एंड नाइट्रोजन +5 से -3 जा रहा है. राइट. सो यहाँ पर you can see that zinc is undergoing oxidation. Right. You can call it as reducing agent. And sodium nitrate में can you see nitrogen undergoing reduction, +5 से -3 में जा रहा है. We'll call it oxidizing agent. ठीक है. What about this example? थर्ड वाला ये जो है PbNO3 होल ट्वाइस का क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? इसमें थोड़ा सा हिंट लेते जाओ. यू हैव Pb2+ आयन एंड NO3- आयन, K+ आयन एंड CrO4 2- आयन.
This is again Pb2 plus ion and CrO4 2 minus ion. The cation anion ka knowledge comes handy, right? So can you see that the oxidation states don't change as such? ये +2 का +2 ये Pb, NO3 माइनस में नाइट्रोजन +5 था तो वही नाइट्रोजन +5 मेंटेन्ड है. पोटेशियम डाइक्रोमेट में यहाँ पे क्रोमियम +6 में था तो यहाँ पर भी +6 में ही है. There is no change. तो ये क्या हो गया? This is a non-redox reaction. समझ में आ रहा है? Or is it going a bit faster? ठीक है. Sometimes there are students who feel that it's a bit fast, and it's absolutely okay. थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी so as to get or acquire that speed. What about the last one? सर redox reaction है. redox reaction. आयोडीन 0 से -1 जा रहा है और सल्फर +2 से +2.5 जा रहा है कि नहीं? राइट. तो यहाँ पर ये I2 क्या हो जाएगा आपका? This will be oxidizing agent and hypo will be reducing agent. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मतलब there can be many examples of non-redox reactions. You will need to check the oxidation state and then comment. Scroll करो ना. क्या कह रहे हो? Scroll करो ना थोड़ा उसका. नहीं, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलो. स्क्रॉल करने बोल. स्क्रोल. हाँ, कौन सा वाला एग्जाम्पल? जो नहीं समझ में आया फटाफट पूछ लो अभी. आई एम spending some time in terms of any doubts you have, anything you could not copy, make sure that you have copied it. So oxidizing और reducing agents reactant species ही होते हैं ना हमेशा? हाँ. अमन क्या नहीं कॉपी किया है फटाफट देखो. क्या कह रहे हो गौरव? कैन वी कमेंट whether a reaction is redox or not by checking the oxidation state of one element also? No, we don't have to check each element. Well, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आगे कि redox है कि नॉन redox है. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है. ठीक है. So identifying redox, non redox is like step 1 of what you are going to do later. ठीक है. which element is oxidizing, which is reducing, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी रहेगा आगे भी. तो अभी के लिए what you have said makes sense, but not in the long run. हाँ, कहाँ गया ये अमन पांडे? कौन सा पार्ट रह गया फटाफट देखो. लेट मी नो. स्टार्टिंग पार्ट का कंपाउंड वाला दिखा दो. स्टार्टिंग पार्ट ये रहा. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो कोवेलेंट कंपाउंड वाला. आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड का. ठीक है. सर इसके ऊपर थोड़ा सा. इसके ऊपर थोड़ा सा. ये डन सर.
सर आप लास्ट के सारे रिएक्शन सिखा सकते हैं एक बार? हाँ ये वाला सर लास्ट पे नहीं, वो इसको देखना था ना, एक अमन को, ठीक है। वन क्या? ओके, देन लास्ट के ये एग्जांपल, एक सेकंड, ये वाला सर नीचे नीचे, ये वाला ये सर थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं? अभी ठीक है। हाँ हाँ, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला। इफ यू हैव नोटेड डाउन, वी आर डन फॉर द डे। सर डन सर। ठीक है। डन सर। हाँ, अब और क्या पूछ रहे थे? कोवेलेंट कंपाउंड एंड मेथड टू डिटरमाइन, स्क्रीनशॉट। ये कोवेलेंट कंपाउंड मेथड टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर में, इसमें यस सर। सर मलेरिया। ये वाला फर्स्ट पार्ट से कोवेलेंट कंपाउंड सर। और ऊपर वाला। हाँ यस सर ये। ठीक है, स्नेल सॉर्ट कर लो अभी, जो जो नहीं लिख पाए फटाफट। डन सर। और किसी को कुछ देखना है, पूछना है, समझना है? लास्ट में जब सल्फर रिड्यूस हो रहा है, लास्ट में जब सल्फर रिड्यूस नहीं हो रहा, से हाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है Oxidize हो रहा है। लास्ट वाले इसमें, सर तो हम लोग ये कहेंगे कि Na2H2O3 गेट्स रिड्यूस और जस्ट सल्फर गेट्स रिड्यूस। दोनों चलेगा। ओके सर। हाँ अर्पित, देयर इज, we'll come to that in some time. ठीक है, sorted है। any other thing? काइनेटिक्स के डाउट नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, चलो। नेक्स्ट क्लास के इनफैक्ट मैं स्टार्टिंग में ही कर लूंगा काइनेटिक्स के डाउट। ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर बाय।